Hello my dear students, good morning to all. Now today we will study fill in the blanks. See, up to B yesterday we have completed. Now see, fill in the blanks. First example, to convert centimeter to millimeter. cm means centimeter to millimeter. We dash, by dash. So here all these fill in the blanks we need that chart only. King Henry died. Okay, first of all we will make that one chart. King Henry died while drinking chocolate milk. Means standard unit of length is meter. So kilometer. Okay, kilometer. I am writing here. Kilometer. After that, hectometer. After hectometer, decameter. After decameter, meter. After that, decimeter. After decimeter, what is that? Centimeter. And lastly, millimeter. Mm mean millimeter. Now look that. To convert centimeter to millimeter. Where is that centimeter? Here. Centimeter to millimeter. What we have to do? We have to multiply by 10. We multiply by 10. To convert centimeter to millimeter, we centimeter to millimeter. Centimeter से हमें millimeter में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? We multiply. So right here multiply. 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 Okay. By which number? 10. By 10. So first fill in the blanks over. Now second. Dash meter makes 6 kilometer. Means dash meter makes 6 kilometer. That means 6 kilometer equal to dash meter. 6 kilometer. In short, I am writing km. K means what? Kilometer. Make means equal to dash meter. Dash meter. So we know that 1 kilometer equal to how much meter? How many times jump? 1, 2, 3 means 1000. We know that 1 kilometer equal to. We know that 1 kilometer equal to 1000 what? Meter. Understood? Therefore, 6 kilometer equal to 6 kilometer equal to 6. What we have to do? Multiplication. 6 into 1000. 6 into 1000 meter. Now 6 into 1000 how much? 6000 meter. We know that 1 kilometer equal to how much meter? 1000 millimeter. Therefore, 6 kilometer equal to how much meter? 6000. That means 6000 meter makes 6 kilometer. So here we have to write 6000. Understood? Now third, dash millimeter. Now third one here given. Dash millimeter make 1 meter. That means 1 meter equal to, this is rough of second. This is second rough. And this one I am doing here third example rough. Okay. Dash millimeter make 1 meter. That means 1 meter equal to dash what? Millimeter. M. Short form of millimeter is mm. Now look at where is that meter and millimeter? Meter here and millimeter here. How many times we have to do jump? Now look at meter here and the millimeter there. Okay. 1, 2, 3. 10 into 10, 100, 100 into 10, 1000. So 1 meter equal to 1000 millimeter. 1000 what? Millimeter. That means 1000 millimeter makes 1 meter. 1000 millimeter makes what? 1 meter. Understood? Here the jump I mean 1, 2, 3. 1000 only, no? Meter to millimeter. 1 time jump, 2 time jump and 3 time jump means 1000. Okay. Now fourth, to convert smaller unit of length to bigger unit. Bigger unit to length, we dash in bracket given option divide or multiply. To convert smaller कौन से है? ये है millimeter, centimeter, decimeter, ये इधर से. To convert smaller unit of length to bigger unit. तो क्या करना पड़ता हमें? यहाँ से अभी छोटे से बड़ा आना है, तो क्या करना पड़ेगा उस समय? बड़े से छोटे जाने से मल्टीप्लाई और छोटे से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमें डिवाइड. टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ टू बिगर units to length, we dash. To convert smaller unit of length to bigger unit of length. To convert smaller unit of length to bigger unit of length, we bigger unit of here of length. We what we have to do? Divide. We divide. छोटे से बड़ा आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? Divide. DE. Understood? So note down these 4 examples. Now fifth example, look at 6 kilometer 37 meter can be written using decimal as dash kilometer. What it is given? 6 kilometer. Now 6 short one of kilometer km. 6 kilometer
37 meter can be written using decimal. In decimal means in point we want DECIMALS. डेसिमल का मतलब पॉइंट पे हमें आंसर लाना है. एस ओ बी यूनिट क्या चाहिए? किलोमीटर. किलोमीटर में आंसर लाना है. तो ये 37 मीटर है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एट फर्स्ट, तभी वो पॉइंट उसमें आ सकता है डेसिमल में. ठीक है, तो ये किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम? 37 मीटर को. अब देखो 37 मीटर को क्या करना है, किसमें लाना है हमें? किलोमीटर में. सो वी नो दैट, फिर 1 मीटर इक्वल टू, वी नो दैट मीटर से किलोमीटर, तो पहले मीटर में दिया है, तो 1 मीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर. किसमें लाना है हमें आंसर? किलोमीटर में. ठीक है, तो ढूंढो अभी तक कहा है मीटर. हियर मीटर टू किलोमीटर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड. लोअर से हम हायर आ रहे, 1 2 3 टाइम्स जंप मीन्स लोअर टू हायर मीन्स डिवाइड 1/1000. समझ में आया? 1 मीटर यानी कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर. तो फिर 1 मीटर यानी कितना आएगा? फिर 1/1000 डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, फिर 37 मीटर यानी कितना होगा? फिर 37/1000. समझ में आया? ये आएगा किलोमीटर में. अब 37/1000 मतलब अभी उसको हम डेसिमल में लिख सकते. किस में लिखना है? पॉइंट 37 लिखे. 37 जैसे है वैसे. कितने जीरो है डाउन में? 1 2 3. सो 3 जीरो राइट साइड में डाल पुट करो. ठीक है, 3 जीरो पुट किया मैंने. 3 जीरो इसलिए, अभी 3 जीरो है इसलिए 3 नंबर छोड़कर पॉइंट 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट. अब पॉइंट के पहले 2 जीरो है. 2 जीरो है ना, 1 जीरो काट सकते हैं आप, यानी 0.037 किलोमीटर. क्या हुआ? 0. यानी 37 मीटर का मतलब 0.037 किलोमीटर. तो यहाँ लिख सकते हैं हम अभी 6 किलोमीटर में ये वाला ऐड करने का. ये जो आया ना आपका 0.037 क्या है? यूनिट किलोमीटर. अब लाइक है या अनलाइक है? देखो यहाँ पॉइंट में नहीं, पहला नंबर. सेकंड नंबर पॉइंट में है, तो ये डेसिमल में है ये, लेकिन ये नहीं, तो लाइक नहीं है. अभी हमें लाइक करना है. पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3. तो यहाँ 6 लिख के पॉइंट तुम जितने चाहिए उतने जीरो बढ़ा सकते हैं आप. ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर है इसलिए मैंने 3 जीरो पुट कर रहा. 1 2 3 लाइक करने के लिए. समझ आया? किलोमीटर प्लस 0.037 किलोमीटर. ठीक है, अब पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यानी अब ये हो गए लाइक. अब इन दोनों को क्या करने का? लाइक होने के बाद प्लस, या प्लस साइन दिया है इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? अभी इन दोनों का प्लस. ठीक है, now I'm doing here plus of these 2 number in 6.000 किलोमीटर. समझ में? प्लस ये कौन सा है? 0.037 किलोमीटर. अब इन दोनों का एडिशन करना है. नाउ यू 0 + 7 हाउ मच? 7 ओनली. कोई भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे वही नंबर आता है आंसर. 0 + 3 3. 0 + 0 0 ओनली. नाउ डेसिमल 6 + 0 6 यानी किलोमीटर. इसका मतलब कितना हुआ? 6.037. आंसर आया ना हमें 6.037 किलोमीटर. यानी इसको सॉल्व किया तो हमें क्या आंसर आया? डेसिमल में आ रहा है क्योंकि यहाँ पॉइंट है इसलिए डेसिमल. कैन बी रिटर्न यूजिंग डेसिमल हैज 6 हाउ मच? 037. Understood? So note down this example. Now the question, fun activity. Okay. Cities on a map. Fun activities given there. Cities on a what? Map. A, B, C, D and E are cities connected by roads as shown in the figure below. How far? Total 6 questions are there. First of all, we will solve these 3 questions. Afterward, next 3. How far does a man travel if he goes from C to A via B? Dash kilometer. We have to write the answer. Second, when a car starts from A, its odometer reading is 14,620. 5 digit number 14,620 kilometer. The car travels from A to D via C. What is its odometer reading? Now we have to find that one also. Odometer means a device in a car that shows the distance it has traveled. The meaning of odometer also given. And third, Mona wishes to go from C to E. Which route will be shorter? C to E via B or C to E via D? So at first we have to now look at what it is given.
A, B, C, D and E are cities. Look that in diagram here. A, B, C, D and E are, these are the names of cities. Okay, given below in the figure given below. How far does it? जैसे अभी हम सिटीज देखे हैं, या सिटीज से हम नहीं क्या जा सकते ना, एक जगह पर हम दूसरी जगह पर जा सकते हैं, जैसे चंद्रपुर से नागपुर, मुंबई वगैरह। वैसे यहाँ सिटीज दिया है 1 2 3 4 5 सिटीज दिया है। और यहाँ पूछा है हाउ फार, फार का मतलब कितने दूर, हाउ फार का मतलब क्या, कितने दूर। हाउ फार डज ए मैन, एक आदमी है वो ट्रेवल कर रहा है, हाउ फार डज ए मैन ट्रेवल, ट्रेवल यानी सफर कर रहा है। इफ ही गोज फ्रॉम सी टू ए, सी से कहा जा रहा है, सिटी सी से ए, वाया बी, ओ वाया का मतलब क्या, थ्रू, बाय द वे आप, वाया का मतलब अलग अलग रूट होते हैं जाने के लिए रास्ते। तो सी से ए जा रहा है वो आदमी, लेकिन वाया, वाया का मतलब थ्रू, ये रूट से जा रहा है। पहले कहा आ रहा बी, वाया बी, सी टू बी आया, फिर बी से ए गया है। ठीक है। हाउ फार डज ए मैन ट्रेवल इफ ही गोज फ्रॉम सी टू, सी से ए ऐसा भी जा सकता था, लेकिन यह क्वेश्चन में वाया बी, तो यानी उसका मतलब ये इस ढंग से जा रहा है। यहाँ सी से पहले बी, फिर बी से ए, सी से लेकर बी तक सिटी, सी से लेकर सिटी बी तक का डिस्टेंस कितना है 15। सिटी सी टू सिटी बी, हाउ मच डिस्टेंस गिवन देयर 15, एंड सिटी बी टू सिटी ए, हाउ मच डिस्टेंस 12। अब 15 में 12 ऐड करो, 15 प्लस 12 हाउ मच, 15 प्लस 12 एड दैट, 15 प्लस 12, 5 प्लस 2 7 एंड 1 प्लस 1 2, 15 प्लस 2 हाउ मच, सॉरी 15 प्लस 12 हाउ मच गेटिंग देयर 27। तो फिर कितना डिस्टेंस कवर किया उस आदमी ने, यानी सी से लेकर ए तक जाने के लिए थ्रू बी कितना डिस्टेंस कवर किया 27। समझ में आया, ये 27 किलोमीटर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ए कार, यानी एक कार है, हम जाने के लिए बहुत सारे हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, जैसे कार, बस, बहुत सारे, ट्रेन, लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, व्हेन ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं कार, ए से, इट्स ओडोमीटर, उस समय ओडोमीटर रीडिंग है कार का 14,620 किलोमीटर दिया। अब ओडोमीटर यानी क्या है, वो इसका मीनिंग दिया है नीचे। ठीक है, इट्स ओडोमीटर इज गिवन, कार का ओडोमीटर दिया है। द कार ट्रेवल्स, अब ट्रेवल कर रही कार फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी, यहाँ पर ए से स्टार्ट हुई और आई है यहाँ पर, तो ये कार ऐसे भी आ सकती, ठीक है, या फिर इस रूट से भी आ सकती, या फिर ए से लेके बी तक, बी से सी ऐसा भी आ सकती है, ए से लेके बी तक, फिर बी से ई और डी, बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या दिया, द कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू डी वाया सी, ए टू डी तो ट्रेवल कर रही, लेकिन वाया सी कौन से रूट से, ऐसा। तो फिर यहाँ से ए से सिटी सी तक का डिस्टेंस 25 है, और सिटी सी से लेकर सिटी डी तक का डिस्टेंस कितना है 14। तो ये 25 प्लस 14 करो, उसमें 25 में क्या करना है, ऐड करना है हमें 40, कितना होगा फिर 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3, यानी 39 हो गया। अब यहाँ पर दिया है व्हाट इज इट्स ओडोमीटर रीडिंग, नाउ ओडोमीटर रीडिंग फाइंड करना है। ओडोमीटर का मतलब ए डिवाइस इन ए कार, कार में एक छोटा सा डिवाइस होता है राउंड शेप में, दैट शोज द डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड। ओडोमीटर मतलब उसमें ऐसा होता है, उसमें नंबर ऐसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ने, वो शो करता है, डिस्टेंस शो करता है। ठीक है, उसमें ऐसा रहता है ना, घूमता है वो काटा उसमें। ठीक है, जैसे क्लॉक में होते हैं हैंड्स, वैसे वहां पर भी होता है, वो शो कर रहा है डिस्टेंस। गाड़ी में कोई भी गाड़ी ट्रैवल होती है फ्रॉम वन प्लेस, तो वो डिस्टेंस शो करती है, उसी ढंग से उसका मतलब है। तो कितना था पहले स्टार्टिंग में, मैंने कार स्टार्ट फ्रॉम ए टू ए, इट्स ओडोमीटर, ए पर कितना ओडोमीटर डिस्टेंस शो कर रहा था 14,620। फिर ए से कार कहा आई सी, और सी से कहा गई फिर डी, सी का डिस्टेंस 25, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 25, और सी से लेके डी तक का डिस्टेंस 14। अब ये 25 प्लस 14 कितना हुआ, ये 39। ये 39 किलोमीटर ये 14,620 में ऐड करना पड़ेगा। 14,620 में कितना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा 39। समझ में आया। अब इन दोनों का प्लस करो, 0 प्लस 9 9, 2 प्लस 3 5, और ये 6, और ये आएगा 4, और ये 1, यानी 14,659। कितना आएगा इसका 14,659। कैसा है ये किलोमीटर, ये कैसा है, ये 14,620 में ये 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, ये क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। ये तो ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए 25 और 14 इन दोनों का ऐड कर देने का
और वो दोनों नंबर इस जो भी आंसर आता 14,620 में ऐड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड दैट वन। सेकंड, तो सेकंड का आंसर 14,659। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। मोना विशेष टू गो सी टू ई। मोना की विश मतलब इच्छा है, विश मतलब मोना की इच्छा है, कहा उसको जाने की इच्छा है। सी टू ई यानी सी से लेकर ये सिटी सी से सिटी ई तक जाना है, उसकी इच्छा है। लेकिन वो कैसे जा सकती, ये रूट से भी जा सकती ई तक, या फिर ऐसी भी बी से वाया डी भी जा सकती, या फिर वाया बी भी जा सकती, या फिर ऐसे घूम के भी जा सकती। अब पास में रहा तो घूम के जाने का कुछ मतलब नहीं, जैसा स्कूल पास में है और घर पास में है तो क्या पूरा घूम के जाने में कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर में कुछ मतलब नहीं। पास वाला हम रूट ये करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट जाना है घर से तो लंबा वाला रूट लेंगे या शॉर्टकट लेंगे हम, शॉर्टकट। वैसा ही सी से अभी ये दिया है डिस्टेंस, ठीक है। अब वो मोना ऐसे भी जा सकती है, मैं बताया, या फिर ऐसा भी घूम के जा सकते, या कैसे भी घूम के जा सकते ई तक, उसको जाना है तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, विच रूट, रूट का मतलब रास्ता, विल बी शॉर्टर, उसके लिए छोटा रास्ता कौन सा होगा। अब यहाँ ऑप्शन दिया है सी टू ई, सी से लेके ई तक तो जाना है, सिटी सी से सिटी ई तक, लेकिन वाया बी ऐसी उसको शॉर्टकट आ रहा, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है सी टू ई, सी टू ई वाया डी। ये रूट से उसको शॉर्टकट आएगा या ये रूट से आएगा, अभी देखना पड़ेगा। फिर अगर ये रूट से जाती होंगी वाया बी से तो सी टू बी कितना है 15, 15 प्लस 10 कितना होता है, देखो 15 प्लस 10 हाउ मच, करो उसमें 15 प्लस 10, आई विल राइट हियर 15 प्लस 10। ये रूट से अगर गई तो 15 में 10 मिला 25 आएगा, ठीक है। 15 प्लस 10 5 और ये 5 प्लस 0 5 और 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये हुआ। अभी इसका देखेंगे हम सी टू ई वाया डी, ठीक है। दो ऑप्शन दिए ना, पहले सी टू ई वाया बी दिया था, तो वाया बी का कितना है 25 किलोमीटर। सी टू डी वाया ई, इसका कितना आएगा अभी देखो, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस कौन सा है, कितना है 40, ठीक है। और डी से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है 9। अभी बताओ 9 प्लस 14 कितना होता है, 9 प्लस 4 13, ओके। कैरी 1 प्लस 1 2 23। कौन सा डिस्टेंस शॉर्टकट हुआ फिर 25 या 23, 23। यानी शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, ये 2 किलोमीटर और कम आता है, सी से लेके ई तक जाने के लिए वाया डी, ये शॉर्टकट रास्ता है। फिर या पूछा है विच रूट विल बी शॉर्टर, सी टू ई वाया सी टू ई वाया बी, ये 2 किलोमीटर से ज्यादा आ रहा और ये 2 किलोमीटर से कम आ रहा, फिर शॉर्टेस्ट कौन सा होगा सी टू ई वाया डी, समझ में आया। देन विच रूट विल बी शॉर्टर, सी टू ई वाया बी और सी टू ई वाया डी, कौन सा रूट शॉर्टर है फिर सी टू ई वाया डी, सी टू ई वाया कौन सा, वाया का मतलब थ्रू रास्ता, वाया सी टू ई वाया डी, समझ में आया। ये शॉर्टकट रास्ता रहेगा। So note down this one. Now fourth question look at 4th, 5th and 6th. 3 question left. Now 3 question. Sonia drives. D-R-I-V-E-S. Sonia drives from A to B, then B to C, and then C to D. How many kilometers did she drive? यानी सोनिया नाम की लड़की क्या कर रही, ड्राइव यानी गाड़ी चला रही है। कहां से, कौन सी सिटी से, सिटी ए से कहा आई हो, सिटी बी, पहले बी में आई, फिर बी से कहा गई, सिटी बी से सिटी सी में, बी टू सी, फिर सिटी सी से कहा गई सिटी डी तक, यानी यहां से आई ऐसी ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। अब यहां पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर डिड शी ड्राइव, तो कितना किलोमीटर उसने ड्राइव किया है। ए टू बी तक का, सिटी ए से लेके सिटी बी तक का डिस्टेंस दिया है 12 किलोमीटर, बी से सी तक कितना है 15 और सी से डी 14। तो ये तीनों नंबर का 12, 15 और 14 का क्या करना पड़ेगा हमें, एडिशन, उतने तीनों नंबर का। कौन कौन से, 12 किलोमीटर, ओके, के एम, ए टू बी के एम 12, बी टू सी 50, ठीक है, और सी से डी कितना है 14। ऐड करो अभी ये तीनों नंबर को, कितना होगा 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11, कैरी 1 2 3 4, यानी 41। कितना आ रहा है इसका टोटल 41। तो कितना किलोमीटर सोनिया ड्राइव कर रही है यहाँ पर 41, समझ में आए। तीनों नंबर का प्लस बाजू में कर सकते हैं आप, 12 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर प्लस 14 किलोमीटर, देन यू विल गेट हाउ मच 5 6 7 7 प्लस 4 11, 41, ओके 41 आया था 41
किलोमीटर। समझ में आया? 12 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर प्लस 14 किलोमीटर। ओके, नाउ फिफ्थ, ए बस गोज फ्रॉम बी टू डी। बस जा रही है बी से, कहा जा रहे हैं? डी। ठीक है, वाया ई मतलब ऐसी आ रही है बस, बी से ई और ई से डी। ठीक है, एंड कम बैक वाया सी। फिर से बस बी पर आ रही है। कम बैक मतलब कहां से स्टार्ट हुई? बी से स्टार्ट हुई, बी सिटी से ई सिटी में आई, ई से कहा आई? डी। ठीक है, उसके बाद एंड कम बैक वाया सी, ये मार्ग से फिर से बैक आ गई बी पर, यानी बस या पूछा है फिर आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मेनी किलोमीटर विल इट बी अगेन बैक एट बी। तो ये बस ऐसी आ रही, बी से सिटी ई से सिटी डी और डी से सिटी सी और सी से बी। बैक मतलब वही जगह पर आ गई, वही बस स्टॉप पे, यानी बी बस स्टॉप से स्टार्ट की बस ने, तो ई पे आई, ई सिटी ई में, ई से डी और डी से सी और सी से बी। तो कितना किलोमीटर हुआ? डी से ई तक 10, ई से डी तक 9 किलोमीटर और डी से सी तक 14 किलोमीटर और सी से लेके बी 15 किलोमीटर, यानी चारों किलोमीटर का क्या करना पड़ेगा? 10, 9, 14 और 15 का एडिशन। अब करो यहाँ, 10 प्लस कितना है? 9। ओके, 9 प्लस 14 प्लस कितना? 15। ऐड करो अभी सभी एक जगह। 9, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, कैरी 1। या कुछ नहीं मतलब 0 भी डाल सकते। 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। यानी कितना किलोमीटर, कितना है इसका आंसर? 48। यानी बस पूरा राउंड ले रहे ऐसा, यहां से ऐसा, फिर बैक फिर से बी पर ही गई, तो टोटल डिस्टेंस 48 किलोमीटर। समझ में आया? हाउ मेनी किलोमीटर विल इट बी अगेन बैक यानी वही जगह पर एट बी से स्टार्ट हुई और बी पर ही आने के लिए कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, वो फाइंड करना था। बी से डी तक आई वाया डी, फिर बैक आ गई बी वाया सी। नाउ लास्ट वन, 6th वन, जतिन लिव्स इन सिटी ए। जतिन नाम का लड़का कौन सी सिटी में रहता था? इस शहर में रहता था, यानी सिटी ए में। ही हैड टू कम टू सिटी डी, उसको आना था सिटी डी में। फॉर सम वर्क, कुछ काम के लिए हम जाते ना, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, एक सिटी से एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, कुछ काम रहा तभी। ठीक है, उसी तरह जतिन को कुछ काम था, तो वो ए में रहता था सिटी ए में, और डी में उसको काम था तो वो आया। जतिन लिव्स इन सिटी ए, ही हैड टू कम टू सिटी डी फॉर सम वर्क, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क रहा था, हमें जाना पड़ता है। ही हैड टू ड्रॉप हिज आंट, उसके साथ में जतिन के साथ उसकी आंटी भी थी, चाची या मामी जो भी है। एट ड्रॉप यानी छोड़ना था। ही हैड टू ड्रॉप मतलब छोड़ना, हिज आंट एट सिटी बी, कौन सी सिटी पर उसके आंटी को छोड़ना था? जतिन को सिटी बी में, सिटी बी में। ठीक है, सो ही कम वाया सिटी बी, तो वो उसको आंटी को छोड़ना था सिटी बी में, तो फिर ये ऐसा आएगा क्या? ऐसा नहीं आएगा, तो ए से सिटी बी आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो वो आया है वाया सिटी बी, तो इसी रूट से आया। फिर यहाँ पर उसने उसके आंटी को छोड़ दिया और फिर वो कहा गया? सिटी डी। अब कौन से रास्ते में से जा सकता? ऐसा भी आ सकता या फिर ऐसा घूम के आ सकता। बी टू सी, यानी सी टू डी वाया सी, या फिर बी टू डी वाया सी आएगा, या फिर बी टू डी वाया ई। अब वो आ गए यहाँ पर, उसने अपना काम कर लिया, जो भी काम था उसका वर्क था सिटी डी में कर चुका उसने। फिर उसके बाद नाउ ही हैज टू गो बैक टू हिज होम, अभी उसको वापस जाना था अपने, कहाँ पे? घर। काम होने के बाद जाते हैं ना हम, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहा था हम रुक जाएंगे 1-2 दिन के लिए, या फिर काम होने के बाद हम अपने घर भी जा सकते हैं। उसी ढंग से जतिन का काम हो चुका था तो वो वापस जा रहा है अब अपने घर। अब कौन से रूट से जाए ना? ये रूट से भी जा सकता, या फिर ये ऐसा भी, यानी डी टू ए वाया सी जा सकता है, या फिर डी टू ए वाया ई। अब यहां पूछा है विच रूट शुड ही हैज टू टेक द, ही विशेष टू टेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट। अभी उसको कम रास्ता वाला यानी कम डिस्टेंस वाला रास्ता चुनना है, पॉसिबल रूट। अब यहां पूछा ही विशेष टू टेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट, विच रूट शुड ही टेक, उसको छोटा वाला रास्ता, कम डिस्टेंस वाला रास्ता चुनना है, तो कौन सा रास्ता चुनेगा वो? अब बताओ।
भाई बता, डी से अपने घर जा रहा है, उसका घर कहाँ था, सिटी ए में, ठीक है। अब डी टू ए जा सकता सिटी वाया सिटी सी, या फिर डी टू ए भी जा सकता वाया सिटी ई। अब इसका पहले अभी ये हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डी टू ए वाया सिटी डी टू सिटी ए वाया सिटी बी, ठीक है। डी टू सी कितना है 14 किलोमीटर, ठीक है, 14 में लिखा है इसमें। ऐसे जाएगा तो कितना आता है वो देखेंगे, डी टू सी 14 और सी टू ए 25। 14 प्लस 25 हाउ मच, 4 प्लस 5 9 एंड 1 प्लस 2 3, तो ये 39 किलोमीटर आ रहा है इधर से। अगर वो जाएगा तो जति अपने घर, अगर इधर से जाएगा तो यानी डी टू ए वाया सिटी ई से जाएगा तो कितना आएगा, डी टू ई कितना है 9, ठीक है, और ई टू ए कितना है 18। 18 प्लस 9 कितना होता है फिर, 8 प्लस 8 16 17, और यहाँ कैरी 1 27। ये आ रहा है, इधर से जाएगा तो 27 किलोमीटर और इधर से जाएगा तो 39 आ रहा। फिर कौन सा शॉर्टकट रास्ता है उसके लिए जाने के लिए, विच रूट शुड ही हैज टू टेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट। स्मॉलेस्ट कौन सा आ रहा फिर, डी टू ए वाया सिटी ई, डी टू ए वाया ई। समझ में, ये शॉर्टेज, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस कम आ रहा है, इसका डिस्टेंस 27 आ रहा और इसका डिस्टेंस तो ज्यादा आ रहा था, 39 आ रहा था, तो यानी यही रास्ता चुनेगा डी टू ए वाया ई। समझ में आया। विच रूट, यहां क्या लिखा है, ही विशेष टू टेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट। विच रूट शुड ही टेक, कौन सा रूट लेगा फिर, डी टू ए ठीक है, लेकिन वाया ई, वाया सी नहीं लेगा क्योंकि ये 25 प्लस 14 ये ज्यादा हो रहा था 39, और इधर से हमने किए तो फिर 18 प्लस 9 27 आया, इसलिए डी टू ए वाया ई। समझ में आया, ये शॉर्टकट रास्ता रहेगा, ये ई है। अंडरस्टूड दिस वन। अब यह पूछा है, और हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज दिस रूट, कितना किलोमीटर ये लॉन्ग है, 9 प्लस 18 कितना आया था, 18 प्लस 9 या फिर 9 प्लस 18 27 किलोमीटर। इसका आंसर है लास्ट में, यहां पर लिखो 27 किलोमीटर। उसका डिस्टेंस भी पूछा था, तो 27 किलोमीटर। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस फन एक्टिविटी, दैट मीन्स cities on a map. Okay, understood? सब डिस्टेंस देखे था, सिर्फ उसमें एडिशन ही करना था ज्यादातर. So understood on this one? Sometimes they may ask, this is fun activity only, this one, but it is given in textbook, so that's why we have solved this one. So note down this question we should look at. Value based question. Mrs. Lakshmi wishes to donate a roll of woolen cloth to an orphanage to make winter uniform for the children who attend school. She was told that there are 12 such children and each need 1.6 meter of cloth. Now here 3 questions were asked, A, B, C. What length of cloth should Mrs. Lakshmi purchase for donation? And B, what would be this length in centimeter? And C, what value of Mrs. Lakshmi can be observed from this action of her? यानी मिसेस लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी नाम की लेडी है, वो क्या कर रही है, विशेष उसकी इच्छा है, विश मतलब इच्छा, टू डोनेट कोई चीज देना, डोनेट मतलब क्या, कोई चीज अपने पास की किसी और को देना, ए रोल ऑफ उलन क्लॉथ, उसकी इच्छा क्या थी देने की, उलन क्लॉथ, उलन यानी बंडल रहता ना, स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो उलन क्लॉथ बंडल रहता ना उलन का, वो वाला, टू एन ऑर्फेनेज, किसको देना चाहती थी वो, ऑर्फेनेज, ऑर्फेनेज मतलब ए चाइल्ड हु हैज लॉस्ट बोथ पेरेंट्स थ्रू डेथ, यानी जिसके मम्मी और पापा दोनों की डेथ हो जाती है कभी कभी बाय इसमें एक्सीडेंट में वगैरह, तो फिर वैसे बच्चे क्या हो जाते हो, अनाथ हो जाते हैं, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता है, तो वैसे बच्चों की स्कूल होती है अनाथालय वैसे बोलते ना, उसमें वो पढ़ाई कर सकते, ठीक है, ऑर्फेनेज मतलब अनाथालय, समझ में आया. टू मेक, तो ये जो अनाथ बच्चे है ना उनको बांटना चाहती है, यानी उलन क्लॉथ, कौन, मिस्टर लक्ष्मी, मिसेस लक्ष्मी, दिस वन, ओके, टू एन ऑर्फेनेज टू मेक विंटर यूनिफॉर्म, क्या बनाना चाहती है, ताकि वो उलन क्लॉथ से क्या बनता है, स्वेटर वगैरह बनता है ना, टू मेक विंटर यूनिफॉर्म फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को एक ही कलर की यूनिफॉर्म होना ना, तो वो वाली यूनिफॉर्म बनाने के लिए वो कुछ प्रेजेंट करना चाहती है, उन वैसे वाले बच्चों में देना चाहती है, उलन क्लॉथ बंडल, ओके.
रोल या फिर फॉर द चिल्ड्रन हु अटेंड स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे अनाथालय में पढ़ रहे हैं वही बच्चों को वो उलन क्लॉथ बांटना चाहती है, ठीक है, लक्ष्मी नाम की लेडी। तो फिर अब यहाँ दिया देर आर 12 सच चिल्ड्रन। अब बांटेंगे तो कितना बांटेंगे, यानी बहुत सारे बच्चे भी होते हैं स्कूल में, तो वो स्कूल में बच्चे कितने थे, 12। कितने बच्चे थे, अनाथ बच्चे 12 थे उस स्कूल में, 12 सच चिल्ड्रन एंड ईच नीड, और एक बच्चे को, ईच मतलब एक एक बच्चे को कितना कपड़ा लग रहा है, 1.6 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1.6 मीटर ऑफ क्लॉथ लग रहा है। तो फिर कितना खरीदेंगे, फिर टोटल चिल्ड्रन बच्चे कितने हैं, 12, और एक बच्चे को कितना चाहिए, 1.6 मीटर, फिर 12 चिल्ड्रन के लिए कितना चाहिए, तो इन दोनों क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पूछा है व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ शुड मिसेस लक्ष्मी परचेज फॉर डोनेशन, फिर कितना लेंगे, तो फिर इसका और इससे क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो आपका आंसर आएगा मीटर में, फिर जो भी मीटर में आंसर आया उसको क्या करना है, व्हाट वुड बी दिस लेंथ इन सेंटीमीटर, मीटर में आया वाला आंसर आपको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। और सी में पूछा है व्हाट वैल्यू ऑफ मिसेस लक्ष्मी कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्शन ऑफ हर, यानी किसी अपने पास की कोई चीज देना, यानी अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। किसी को अगर घर में कोई बेगर यानी जो भीख मांगने वाले वगैरह आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उनको दान करना चाहिए, है ना। व्हाट वैल्यू ऑफ यानी एक्ट, यानी उनको खुश, वो लोग खुश हो जाएंगे। व्हाट वैल्यू ऑफ लक्ष्मी कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्शन ऑफ हर, ऐसे करने से, किसी को देने से कुछ कपड़े वगैरह, तो अपने उनको भी खुशी मिलेंगे और अपने को भी खुश लगेगा, ठीक है। वैसे यानी एक्ट ऑफ काइंडनेस, क्या शो कर रही है, दूसरों के प्रति दया की भावना वगैरह दिखाना, ठीक है, लक्ष्मी, या फिर बिना वायलेंस उसको हम बोलेंगे। तो सबसे एट फर्स्ट यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, समझ में आया। लक्ष्मी नाम की लेडी थी, वो बच्चों को उलन क्लॉथ देना चाहती थी, वो कौन से बच्चों को, जो एकदम यानी अनाथ बच्चे, वैसे बच्चों में बांटना चाहती है। तो वहां 12 चिल्ड्रन थे बच्चे स्कूल में, उस स्कूल में, और एक बच्चे को 1.6 मीटर कपड़ा लग रहा है, तो फिर 12 बच्चों को कितना लगेगा वो फाइंड करना है पहले, और दूसरा जो भी आएगा मीटर में आएगा उसको, उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। और लास्ट में तो जनरल क्वेश्चन पूछा है, इट शोज द एक्ट ऑफ काइंडनेस और बिना वायलेंस। सो एट फर्स्ट यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्क्ड, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ शुड मिसेस लक्ष्मी परचेज फॉर डोनेशन, यानी कितना कपड़ा खरीदेंगे वो बच्चों में देने, बांटने के लिए। तो सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने देखे थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 12, एग्जाम्पल में देखे था। लेंथ ऑफ उलन क्लॉथ रिक्वायर्ड या फिर नीड फॉर ईच मतलब 1 चाइल्ड इक्वल टू हाउ मच, 1.6 मीटर, ये भी दिया है क्वेश्चन में। अब ये फाइंड क्या करना था, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ मिसेस लक्ष्मी परचेज फॉर डोनेशन, ये फाइंड करना था। तो एक बच्चे के लिए इतना लग रहा है 1.6 मीटर, तो 12 चिल्ड्रन के लिए कितना लगेगा, तो क्या करना होगा फिर 1.6 मीटर इंटू 12, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ मिसेस लक्ष्मी परचेज फॉर डोनेशन इक्वल टू 1.6 मीटर इंटू 12। अब करना है इसका मल्टीप्लीकेशन। नाउ 2 6 आर हाउ मच, 12, 12 का 2 कैरी 1, समझा है, 2 1 आर 2, 2 प्लस 1 3 लिखे। फिर ये नंबर से मल्टीप्लाई करने के पहले यहाँ क्या डालना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा 0, सो पुट हियर 0, ओके। नाउ 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 6 हाउ मच 6, नाउ 1 इंटू 1 1। अब इनका करना है हमें क्या, प्लस 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 6 9, और ये 1। अब पॉइंट कितने नंबर के पहले है, या राइट से 1, तो 1 नंबर के पहले पॉइंट, यानी 19.2 मीटर इतना कपड़ा खरीदना पड़ेगा उन बच्चों में बांटने के लिए, 12 बच्चों में बांटने के लिए, समझ में आया, 19.2 मीटर। हेंस 19.2 मीटर, 19.2 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ मिसेस लक्ष्मी परचेज फॉर डोनेशन, इतने बच्चों में बांटने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। अब सेकंड में पूछा था, इसी को क्या करना था, व्हाट वुड बी दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। अभी जो मीटर में आंसर आया उसी को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, सेकंड में, ठीक है ना, यानी 19.2 मीटर को सेंटीमीटर में। तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 19.2 मीटर इक्वल टू 19.2 इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। एट फर्स्ट यू नोट डाउन दिस A1 A क्वेश्चन, आफ्टरवर्ड आई विल राइट B एंड C। नाउ B व्हाट इट इज आस्क्ड हियर, व्हाट वुड बी दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। जो भी आंसर हमें मीटर में आया उसको सेंटीमीटर में लाना है, लेंथ इन सेंटीमीटर वी हैव टू फाइंड, यानी 19.2 आया था इसके पहले आंसर A में, ठीक है। अब उसको 19.2 मीटर किस में लाना है हमें, सेंटीमीटर में।
So we know that what is the relation in between meter and centimeter? We know that 1 meter equal to how much centimeter? 100 centimeter. Therefore 19.2 meter equal to 19.2 into 100. Now how to solve this one? Forget about point and this 20. Number से multiply करो. 192 into 1. 192 into 1. 192. Now how many zeros? 1 2. 2 0 डालना है यहाँ पर राइट में. अब पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के पहले है? 1. तो यहाँ पर 1 नंबर के पहले पॉइंट, तो ये आएगा सेंटीमीटर. अब पॉइंट के बाद जीरो को वैल्यू रहता है क्या? जीरो को कोई वैल्यू नहीं रहता है पॉइंट के बाद, यानी हम 1920 इक्वल टू 1000. हेंस लेंथ इन सेंटीमीटर इज, यहां पर लिख सकते तो इसके आगे कितना आया? यहाँ पॉइंट आया. पॉइंट के बाद जीरो को नंबर वैल्यू नहीं होता, यानी 1920 सेंटीमीटर. हेंस लेंथ in centimeter is 1920 सेंटीमीटर. समझ में आया? ये हुआ बी का आंसर. हेंस लेंथ इन सेंटीमीटर इज 1920. नाउ थर्ड में क्या पूछा था? सी में व्हाट वैल्यू ऑफ मिसेस लक्ष्मी कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्शन ऑफ हर. यानी क्या कर रहे हो गरीब, यानी अनाथ बच्चों में वो उलन क्लॉथ बांट रहे, यानी उसको बोलेंगे एक्ट ऑफ काइंडनेस या फिर बिनोवेलेंस. बिनोवेलेंस का मतलब एक्ट ऑफ काइंडनेस, दया की भावना, किसी के प्रति दिखाना. ठीक है, गरीब बच्चे रहते हैं उनके प्रति कुछ यानी दान करके उनमें यानी थोड़ा ये दिखाना, दया वगैरह बच्चों के प्रति. ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन नंबर टर्म 2, लेसन नंबर फर्स्ट, लेंथ. इन नेक्स्ट पीरियड वी विल डू रिविजन ऑन दिस लेसन. ओके, सो नोट डाउन दिस वन, आंसर बी एंड सी.